I am Ranjit Kumar. Today, my lecture in heredity. Heredity, what do you mean by heredity? Heredity is a genetic material which will transfer of one generation to the another generation. हेरिडिटी क्या है? एक जेनेटिक मटेरियल है जो वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन क्या होता है, ट्रांसफर होता है. अब जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स. फादर ऑफ जेनेटिक्स, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स है जिसे हम कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल. फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल. जॉन मेंडल कह रहे हैं कि जो ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जो जन्म हुआ था, बर्थ जो है 1822 में ऑस्ट्रिया के ब्रोन शहर में हुआ था और इनका जो डेथ हुआ था 1884 में. इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो लगभग 65 वर्ष तक किए थे. इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका नाम है पाइसम सेटाइबम. क्या नाम है? पाइसम सेटाइबम. पाइसम सेटाइबम बोटेनिकल नेम है मटर. किसका नाम है? मटर का जो बोटेनिकल नेम होता है पाइसम सेटाइबम. इन्होंने जो मेंडल जो महोदय थे, इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था पाइसम सेटाइबम पर, इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये जो पाइसम सेटाइबम है ये एनुअल में 4 से 5 टाइम्स ग्रो करा सकते हैं और इसके जो फ्लावर्स है ये व्हाइट कलर और जो है वायलेट कलर, ये दोनों में आपस में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. और इस एक मोस्ट रीजन है कि जो पाइसम सेटाइबम है इसमें हाइट, लेंथ और ड्वार्फ दोनों देखने को मिलता है. इसीलिए जो मेंडल्स जो महोदय थे, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो है पाइसम सेटाइबम पे किया था. कह रहे कि जो मेंडल महोदय थे, इन्होंने अपना 3 नियम दिए थे. पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस. पहला क्या था? लॉ ऑफ डोमिनेंस. लॉ ऑफ डोमिनेंस. सेकेंड था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. थर्ड था लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. लॉ ऑफ असॉर्टमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने अपना दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस. कह रहे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में इन्होंने क्या किया था? कह रहे कि जैसे कैपिटल टी और एक स्मॉल टी. जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ डोमिनेंस व्हेन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू ईच अदर इन F1 generation which character is expressed that is called dominant and one character is latent that is called recessive characters. इन्होंने when capital T which represented by pure tall and small t which represented by dwarf, pure dwarf. Capital T which LS is equal that is called homozygous and represented by capital T and is represented by small t which cross between in F1 generation capital T and small t. Capital T which represented is dominant character and small t which represented by recessive character. The when between in pure dwarf cross between in pure dwarf in found in F1 generation which found in F1 generation all plants is tall. All plants is tall. So the dominant character in law of dominance है when one pair of contrasting character to each other in F1 generation which is found in character is expressed that is called dominance and latent character that is called recessive. And another is a law of segregation. क्या है? law of segregation. law of segregation में when one pair of contrasting character to each other that which capital T and small t. Capital T which represented by pure tall and small t which represented by pure dwarf. Capital T we have at to LS is same, that is called homozygous.
homozygous which represented by capital T and small t cross between in F1 generation capital T and small t। तो आप कह सकते हो कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर to each other when capital T which represented by pure tau and small t which represented by pure dot cross between and which is found in F1 generation all plants is tall, all plants is tall in F1 generation which cross between the self fertilization and self replication। So in F2 generation which is found capital T small t capital T small t capital T capital T capital T small t capital T small t and small t small t। कहने कि कैपिटल टी इज ए प्योर टॉल, क्या प्योर टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल एंड कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल एंड स्मॉल टी प्योर टॉल, प्योर डॉर्फ which is found in F2 generation। कह रहे कि जो F1 all plants tall but F2 generation which is not combined with alleles and that is called segregate। कह रहे कि जैसे F1 जनरेशन में ऑल प्लांट टाल है लेकिन F2 जनरेशन में आपको देखने को मिल रहा है वन प्योर टाल एंड टू हाइब्रिड टाल एंड वन प्योर डॉर्फ। तो इसका जो अगर इसमें दो होते हैं, फिनोटाइप होता है दूसरा जीनोटाइप। अब जो फिनोटाइप्स व्हिच कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल कैरेक्टर, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है हम उसको हम फिनोटाइप कहते हैं और जो इंटरनल कैरेक्टर होता है जिसे हम जीनोटाइप कहते हैं। तो फिनोटाइप में इसमें जो फिनोटाइप होगा फिनोटाइप, तो फिनोटाइप इसमें आपको दिख रहा है वन प्योर टाल है, टू हाइब्रिड टाल है एंड वन प्योर डॉर्फ। तो इसका दिख रहा है कि जो प्योर टाल कितने हैं, वन है और हाइब्रिड टाल कितना है, टू है एंड वन प्योर डॉर्फ है। इसका मतलब इसका जो फिनोटिपिक जो रेशियो होगा 1:2:1 एंड जीनोटिपिक जो रेशियो होंगे जीनोटिपिक रेशियो इज ए कैरेक्टर व्हिच बिटवीन द इंटरनल कैरेक्टर। तो इंटरनल कैरेक्टर जैसे कैपिटल टी, अब देखिए और फिनोटाइप में ये भी है कि कितने हैं, एक तरह से टॉल टॉल टॉल, इसका जैसे रेशियो इस तरह भी कर सकते हो, मतलब 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। और जीनोटाइप में 1 कैपिटल टी 1:2:1। तो फिनोटाइप का जो रेशियो 3:1 है और जीनोटाइपिक जो रेशियो 1:2:1। तीसरा आता है लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ असॉर्टमेंट में टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू ईच अदर, जैसे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। कैपिटल आर व्हिच रिप्रेजेंटेड बाय राउंड and capital Y represented by yellow and small r which represented by wrinkled and small y represented by green in cross between when two pair of contrasting character। तो two alleles are different, that is called heterozygous and represented by capital R, capital Y, इधर भी small r, small y and cross between in F1 generation which are found capital R, small r, capital Y, small y। capital R represented by round and इधर का R is capital Y which represented by green
राउंड येलो। इन एफोजरेशन, इसमें नोट में लिख लेना कि जो कैपिटल आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड के लिए, और जो कैपिटल वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है येलो के लिए, और जो स्मॉल आर है ये रिंकर्ड के लिए, और जो स्मॉल वाई है ये ग्रीन के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें क्रॉस होगा, क्या होगा? सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेल्फ फर्टिलाइजेशन, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें ट्रिक है। एक ट्रिक ये है कि जैसे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है, तो इस पहले कैपिटल आर का पहले कैपिटल वाई से, फिर इसी कैपिटल आर से स्मॉल वाई से, फिर इधर कैपिटल वाई से कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इसी तरह जो कैरेक्टर बनेंगे, अब यहां पर जो बनेगा 16 रेशियो बनेगी। तो हो जाएगा यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। जो इधर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेल और फीमेल, जो आप इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर भी रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो देखिए जैसे कैपिटल आर से कैपिटल आर हो जाएगा, कैपिटल आर से कैपिटल आर रिप्रेजेंट, कैपिटल वाई से कैपिटल वाई, यहाँ फिर कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर जो है, जो भी कैपिटल लेटर होता है उसको पहले लिखा जाता है, और जो स्मॉल लेटर रहता है उसको बाद में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे इसमें स्मॉल वाई हो गया, यहाँ पर कैपिटल आर है, स्मॉल है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ भी कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ भी स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। यहाँ भी हो जाएंगे कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। और यहाँ भी स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब यहाँ पर जो इसका पहला कैरेक्टर, जैसे कैपिटल आर है यहाँ का और यहाँ का, दोनों में से पहला, जैसे आर का पहला अक्षर लेंगे और वाई का पहला अक्षर। जैसे कैपिटल आर जिसे हमने बताया कि रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड, और कैपिटल वाई येलो, तो यहाँ क्या हो जाएंगे? राउंड येलो। क्या हो जाएंगे? राउंड येलो। और यहाँ भी क्या हो जाएंगे? राउंड येलो। क्या हो जाएंगे? राउंड येलो। और यहाँ भी कैपिटल आर कैपिटल वाई है, इसलिए क्या हो जाएंगे? राउंड येलो। और यहाँ भी राउंड येलो, यहाँ भी हो जाएंगे राउंड येलो। यहाँ भी क्या हो जाएंगे? कैपिटल आर है और स्मॉल है, तो यहाँ इसका मतलब राउंड और ग्रीन होंगे। क्या होंगे? राउंड ग्रीन। और यहाँ क्या होंगे? राउंड और येलो, राउंड येलो। इस तरह इसका जो अनुपात है, जैसे यहाँ भी कैपिटल आर है और स्मॉल, कैपिटल आर क्या है? राउंड होगा, स्मॉल आर क्या है? ग्रीन। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? राउंड ग्रीन। क्या हो जाएंगे? राउंड ग्रीन। यहाँ भी कैपिटल आर है, कैपिटल आर, इसका मतलब येलो, राउंड येलो होंगे। क्या होंगे? राउंड येलो। यहाँ भी क्या होंगे? राउंड येलो। यहाँ स्मॉल आर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है रिंकर्ड, और कैपिटल वाई है, इसका मतलब रिंकर्ड और येलो रिंकर्ड, रिंकर्ड येलो। क्या शो कर रहा है? कैपिटल येलो, तो रिंकर्ड येलो शो कर रहा है, रिंकर्ड येलो। और यहाँ भी स्मॉल आर है, यहाँ भी रिंकर्ड और येलो शो कर रहा है, रिंकर्ड येलो। यहाँ कैपिटल आर है तो राउंड हो जाएंगे, स्मॉल कैपिटल वाई है तो येलो।
तो यहाँ भी जो है राउंड और स्मॉल वाई है, तो राउंड ग्रीन क्या हो जाएंगे, राउंड ग्रीन हो जाएंगे। और यहाँ भी रिंकर्ड येलो क्या हो जाएंगे, रिंकर्ड येलो। और यहाँ रिंकर्ड ग्रीन। तो इसमें जो इसका जो रेशियो आ रहा है, इसमें जो फिनोटिपिक जो रेशियो आ रहा है, इसमें फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है, तो राउंड येलो जो है, राउंड येलो ये आ रहा है आपका 9, और जो राउंड ग्रीन है ये आपका आ रहा है 3, राउंड ग्रीन ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। और रिंकर्ड येलो कितना आ रहा है, 3, रिंकर्ड येलो 3 आ रहा है, और एक आ रहा है रिंकर्ड ग्रीन। तो इसका मतलब रिंकर्ड ग्रीन कितना आ रहा है, 1। तो इसका जो फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 9:3:3:1। और जो जीनोटिपिक रेशियो आता है, इसका जीनोटिपिक जो रेशियो है ये आता है 1:1:1:1:2:2:2:4 ये आता है। तो एक बार देख लीजिए। तो कह रहे हैं कि जैसे लॉ ऑफ असाइनमेंट या डायब्रिड क्लास कह रहे हैं कि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर टू ईच अदर व्हेन capital R is represented by round yellow and small y represented by wrinkled green, which cross between in F1 generation which are found in all plants is round yellow, and F2 generation which are found 9 round yellow and 3 round green and 3 wrinkled yellow and 1 is found wrinkled green, which are found in ratio जो phenotypic 9:3:3:1 and genotypic ratio 1:1:1:1:2:1:2:4 बस।